सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ॐ शान्ति शान्ति हरि ओम। So, Piyush Kunj, are you ready? यस महाराज। हाँ जल्दी कर देना, जल्दी। बहुत लंबा आर्टिकल है लेकिन तुम लंबा मत करना। हाँ जी महाराज। अच्छा चलो। ठाकुर माँ स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर नंबर 25, दैट इज फॉर्मलेस मेडिटेशन. Non-dualism is a far off goal. There is well-known Sanskrit verse which aptly expresses the true spirit of Hindu worship. O Lord, in my meditations, I have attributed forms to Thee, who art formless. O Thou, teacher of the word, by singing Thy glory, I contradicted the truth that Thou art beyond all speech. O Lord of the universe, pray, forgive me for this threshold fault of mutilation committed by me. All worship is undertaken with the basic assumption that behind all forms, beyond all names and symbols, shines the supreme light which is without form and attributes. Spiritual life is like staircase leading to the final experience of non-dualism, which may be compared to the terrace. Since most of us are still on the staircase and not on the terrace, we should stress the steps very much now, but always remembering that our goal is terrace beyond all steps. Moreover, we should first of all know where on the staircase we actually stand. Many people want to practice non-dualism meditation very often after reading few books on Advaita. We should not attempt anything simply by reading books. So long as we meditate, so long as there is meditation and the object of meditation, even in the subtlest form, it is dualism. But in most important, to bring one into the many. In the midst of all multiplicity, we should not forget the one which is ultimate goal, the infinite, the absolute, and must form the background of all forms of God we meditate. In the path of devotion, an aspirant concentrates his mind and feelings on his Ishta Devta or holy personality. In the great incarnation and prophets, you see a unique manifestation of divine purity, knowledge, love, etc. In the nucleus of our small personalities, also there is the same purity, knowledge, love, etc. But it is covered with ignorance. Our personality is a combination of true self and the false self. If you imagine that you are drowned in the infinite ocean of consciousness, you will feel that your personality is something subtle that has become gross. However, instead of meditating on a holy personality, you may, if you like, meditate on non-human characteristic God, symbol of the divine, like the ocean or the sky. In the formless meditation, think both the vast mass of light, your object of worship, and you, the small particle of light, are drowned in the vast infinite ocean of light. It is possible for devotee to love the formless as much as God with form. This is only a question of temperament. In this, there are three steps: with form and with attributes. Second, without form and with attributes. Without form and without attributes. In the course of our spiritual practice, we must take a definite standpoint from where to proceed. We should not go by our mood of form and formless attributes. At every step, we must be in touch with the divine, whatever be our mood. It is this inner contact that is more important than the contact of meditation, with form or without form. Sri Ramakrishna was very fond of Sanskrit passage. When I think I'm
of myself as identified with the body, I am thy servant, and thou art my master. My will is controlled by thy will. When I think of myself as Jiva, individual soul, as distinct from body, I am part of thou art the whole. When I recognize the spiritual principle in me as distinct from body and mind and Jiva, I realize that I am only with thee. The standpoint we adopt must be based on our actual experience. We should not go on changing our attitude with reading books. Whether we practice meditation on a holy personality or on the formless, what is the most important is to reduce our identification with our body. It is an important law that our concept of reality depends upon our concept of ourselves. So, in order to meditate on the formless God, we must first consider ourselves to be formless. We must depersonalize ourselves first before we try to depersonalize God. So, in order to practice formless meditation, begin yourself first. Look upon yourself as the spirit, as the inner light. We must learn to think in terms of the soul. Never stress the body aspect. Never think of yourself as a man or a woman. Just blast this rotten sense of personality, this meaningless egotism of ours, like bombarding it with some of the grand passages from Shankara, like Nirvan Shatakam, where it goes like Manohar Buddhi Nahankar Chittani Naham Cha Shrota Jive Na Cha Ghranetre Navyo Bhumir Tejo Vayu Chidananda Navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. So it goes like this. That's all. I am neither the mind nor the intellect, neither the ego or the mind stuff, neither the sense of hearing, taste, smell, touch, or sight, nor am I element of earth, fire, or air. I am of the nature of pure consciousness and bliss. I am the supreme self. Further, I am neither a human being, nor a god, nor a demigod. I am neither a Brahmin, nor a Kshatriya, nor a Vaishya, nor a Shudra. I am neither a student, nor a householder, nor a forest dweller, nor a monk. I am the self, the infinite consciousness. Go on repeating sincerely, I am Brahma, I am Brahma. The body may be the center of our consciousness. The mind may be center of our consciousness. The little soul may be the center of consciousness. The infinite may be the center of consciousness. And our whole attitude, all our actions and thoughts depend upon the center of our consciousness we have chosen, and where we have our center of gravity. Every soul is like a point, and the God is like an infinite ocean of light joining every point of the circle. In the beginning, all this may be imagination, but ultimately it becomes an experience. We should try to remain in one of these three spiritual moods, dwelling on the unity, merging the individuality in it, identifying oneself with the infinite, and then feeling the personality only as its manifestation. Thinking of oneself as an individual, and then feeling the presence of immanent, all-pervading principle, the soul of our soul, on whom the soul is fully dependent. So long as ego persists, let's be connected with the infinite divine as in point 2 and 3. Let the ego never. डिस्कनेक्ट हो गई है. Hello. एक मिनट महाराज. Hello, Sanjay ji, I am audible? Yes, sir, audible. Please continue. We will find the soul, our soul always gets the divine support and connection even when the body consciousness becomes strong. You may also practice one of the following types of formless meditation. The aspirant imagines he is a fish swimming in one of undivided and eternally indivisible ocean of existence
knowledge, bliss without any obstruction whatsoever. The aspirant, second, the aspirant imagines he is a bird flying in the infinite sky without anything to stand in its way anywhere. Number three, the aspirant is like a pot fully immersed in water, water inside and water outside. Fourth, the aspirant imagines himself to be the point of self consciousness immersed in the one individual ocean of light. Instead of thinking of the infinite, the little, the petty, the small, it is better to think of the vast, the infinite, the stars, the solar system, the Milky Way, and the nebula, which are new star systems in the process of formation. And then dissolve everything. This earth, the sky, the solar system, everything. The infinite, undivided ocean of life. In the well-known Purusha Sukta, one of the most ancient and sacred hymns of the Hindus, the Vedic Rishi says, all this manifested universe forms only a fragment of the divine glory. Such a small pit, all after all. In the midst of all these meditation, we should not forget the most important fact of our being souls. Whether we meditate on a finite form or on the formless, we should always work, look upon ourselves as souls. And we should always remember that the divine is more real and vaster than the soul. As Shankaracharya says, "O Lord, it is the waves that get merged in the ocean and not the ocean in the waves." So when all limitations are removed from me, it is I who become merged in the thee and not thou in me. In the higher states of spiritual consciousness, the aspirant forgets the phenomenal world altogether. In the Gospel of Sri Ramakrishna, this idea is conveyed by the example of a hunter aiming at a bird. It is fundamental law in spiritual life that whatever we take to be real draws our whole energy, our intellect, thoughts, and action. If we take this word to be real, we become preoccupied with it. And if you want to turn to spiritual life, this word should cease to be more real than the spirit. Monoism asserts right from the beginning that the word is unreal and the divine alone is the only real. Where dualism begins by taking the word to be real and then tries to seek God who gives reality to it. How to connect our individuality with divine, how to connect the part of the whole. This is our task in spiritual life. And the extent we succeed in doing that, to the extent we become more spiritual, element free. The secret lies in changing our concept of oneself. If we identify ourselves with our body, then this word and everything connected with it comes to us as matter of course. The divine becomes real to us only when we regard ourselves to be souls. We can counteract the thought that we are bodies, that we are men and women, that we are doers and enjoyers by raising strong contrary thought current. We must regard ourselves to be self-luminous Atman, unattached to body and mind. We should reflect deeply on this truth until it sinks deep into his personality and transmutes his outlook on life. The mind is not something conditioned once for all by heredity, but is but in nature it is dynamic and can be changed by proper discipline. By meditating on a holy personality, we imbibe his personality, his purity and virtues and become holy ourselves. On the greatest Upanishad dicta, like I am Brahma, or on the sentences describing the non-dual experience written by Shankara and other masters. By intensely concentrating on the mind, on the nature of the real self, one can awaken in oneself the forgotten memory of the self. However, this is not possible unless we have previously purified our mind and brought about total change in our outlook phenomenal world. By constant meditation, he realizes that he is Atma and not the mind of the body. In the Bhagavatam, the above idea is conveyed through the lesson
that an Avdhuta wandering monk learned from the cockroach and a wasp. This does not mean that this kind of meditation on the self is a kind of autosuggestion, though the reality is beyond experience of the ordinary man's mind. It can be directly realized by the purified mind. Hence, meditation in this case is not on the unreal but on the real. Meditation only prevents the rising of thoughts contrary to the truth, which shines by itself. When the thought are still through concentration and the ignorance covering the Atma is destroyed, the self shine forth. Ordinarily, our thoughts live and or thought life and physical life imply complete identification with our gross body and our subtle body. And since it is not possible for us to get rid of this false identification of all of a sudden, we should at least see that we minimize it more and more as we proceed towards the goal. The trouble is that on the back of all our emotions, there is an idea that we are men and women, that we are personalities and individuals. At the same time, we must feel that we are spiritual aspirants or devotees of God. Beside this, certain amount of self-analysis is absolutely necessary. For concentration, most of us need a personal divine ideal or holy personality, Ishta Devta. But in side by side with our meditation on the chosen ideal, we should also try to think of and meditate upon the principle of which this holy personality is manifestation. Over and above this, we should have also monastic meditation in which we try to separate ourselves from all that is not such. Our bodies, the gross and the subtle, this course is to be followed by all. It is very essential that we do this time and again. It is also very essential that we have a fixed set of meditation every day. And these meditations are to be read and repeated every day without any break or change. It is very necessary item of our sadhana. If on any day one finds one's body consciousness, one's individuality becoming stronger than usual, then one must meditate on one's scriptural passages, especially monastic ones, more than ever. We become purer and purer to the extent our identification with our body becomes less and less, and to the extent become purer and the process of purification intensified to the extent that we move towards self-realization. In one of the Upanishads, there is this passage that is, one must go on steadily and perseveringly with one's japa, at the same time concentrating on one's mind on the self. This is the double process of worship and analysis. Knowledge as thought removes ignorance, and that knowledge disappears. Knowledge gives the aspirant the true idea of individual self and the true idea of the universal self, and then brings about this perfect union. After all, it ceases to be, and the absolute is reached, in which there is no knower, knowledge, or the known. Pure infinite consciousness always remains. The devotee who is dualistic in his approach tries to connect his self with God. The non-dualist tries to have extreme form of analysis in which all that is non-divine is eliminated and the divine is realized. Both try to deny the ego, to eliminate it, but in different ways. The devotee says, I am nothing, thou art everything. The non-dualist says, my personality is nothing, the infinite is everything. There is a Sanskrit passage conveying this idea. Some people worship thee saying, I am thine. Some others do it saying, I am thou alone. The final result of both is the same. So, really speaking, the infinite thou is the same as this infinite I. Both lead to the same ultimate realization. Only the way of expressing it is different.
So all is the approach. Jai Thakur. Very good. Very good. Shivani, बहुत बढ़िया. we start with questions. Good translation, good commentary has been done. We start with the questions. Is that okay? Shivani, are you ready? जी महाराज प्रणाम. Okay, very good. हेलो. Shivani, ask your question. So Shivani actually is in train. So there might be some problem. महाराज आवाज आ रही है? आ रही है. हाँ, क्वेश्चन पेज नंबर 421. हाँ. How is it possible not to change our attitude after reading books, as it will definitely get changed? ना तुम्हारा क्वेश्चन है कि वो तो है कि वो बाद में आया. तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? Regarding meditation. महाराज हाँ, one should practice meditation as per the guidance of practice formless meditation. Then can we do? Okay, ऐसा है. You have to continue meditation as instructed by the Guru, okay? But इसके साथ में you can also, यतीश्वरानंद जी has told, निराकार ध्यान को कंबाइन कर सकते हो. यतीश्वरानंद जी बहुत जनरली करते थे कि वो जब देते थे तो कहते थे कि सपोज करो कि सर्वत्र देयर इज ए लाइट, एवरीवेयर देयर इज लाइट, सब जगह लाइट है. उस लाइट तुम्हारे गुरु का रूप ले लिया है और तुमने तुम्हारा रूप ले लिया है. अब गुरु के इष्ट के और ध्यान करने के बाद फिर गुरु को और आपको फिर उस लाइट के अंदर विलीन कर दो. So you begin with Nirakar, go to the Sakar, and then all merge into Nirakar. So that Nirakar roop or Sakar roop, formless and non-formless. सुनाई नहीं दे रहा है. हाँ? सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से. क्लियर आवाज नहीं आ रही. एक मिनट देखता हूँ. मेरा सिग्नल ठीक है. कुछ आवाज आ रही बैकग्राउंड में. नहीं, मेरा कमरा यहाँ तो बिल्कुल नहीं है. यहाँ तो आवाज नहीं. मैंने पंखा भी बंद कर दिया है. गर्मी है फिर भी. It is only from the Dr. Shivani's. She has to mute, otherwise we cannot listen to you. That because the train noise is coming. Oh, Shivani, how cannot she mute? वो तो आप क्वेश्चन पूछ रही है. मैंने म्यूट कर. Maharaj ji, please repeat your this few sentences, last few मेरा ये sentences. कहना है, उनका ये क्वेश्चन है कि हमें इष्ट के अनुसार ध्यान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो महाराज निराकार का ध्यान की बात कर रहे हैं बार बार. तो दोनों किया जा सकता है. यतीश्वरानंद जी कहते थे कि पहले जब ध्यान करने बैठो तो सोचो कि सर्वत्र एक आकाश है या ज्योति है. पूरा सर्वत्र ज्योति है. उस ज्योति ने तुम्हारे इष्ट का रूप लिया है और इस ज्योति ने तुम्हारा ही रूप लिया है. अब तुम उस इष्ट का ध्यान, अपने ज्योति का रूप का ध्यान करो. रूप का ध्यान करने के बाद में उसको फिर मर्ज कर दो. जब समाप्त करोगे तो अपने रूप को और अपने इष्ट को, दोनों के रूप को उस परमात्मा ज्योति में विलीन कर दो. ओके? Yes, Maharaj, thank you. हाँ. अरे निवेदिता, तुमको भी ये इंस्ट्रक्शन दिया था? ये नहीं मालूम है? मुझे गुरुदेव ने कुछ भी नहीं दिया था. आपके थ्रू ही मिला है सब. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, इज इट ओके? शिवानी, सेकंड क्वेश्चन. हाँ, पेज नंबर 423. One should repeat daily, I am Brahma, I am
Brahman, like Shiva also. But I like this because of its tune and maybe the नहीं नहीं, ऐसा है कि don't worry about the tune. The idea is more important. voice. So what you told me, so the same I am doing. The idea is more important. Try to उसको याद कर लो पूरा और बिना ट्यून के प्रत्येक दिन में उसको मेडिटेट करो उसके ऊपर. Is that okay? Is it to be mentally repeated? Mentally repeated. Keep on repeating the whole day. I am Brahman. I am Brahman. अरे हाँ, इसको मनोबुद्धि चित्त अहंकार अकेले रहो तो रोज जोर से बोलो और सुनो इसको. Everyone must be do it. यतीश्वरानंद जी बोलते थे, हमारे गुरु ये सत्स्वरूपानंद जी एक थे, वो बोलते थे कि मेरी ये मनोबुद्धि अहंकार चित्त निनाहम सबको रिपीट करना चाहिए. तो अब जिस प्रकार आप कुछ भी चीज रिपीट करते हो, गीता रिपीट करते हो, उस प्रकार करो इसको भी. अब मेंटली करो या मुंह से करो, इसमें क्या फर्क पड़ता? महाराज मैंने याद कर लिया है. अच्छा, गुड, वेरी गुड. वो इतना याद करोगे तुम अपने शरीर को भूल जाओ. थर्ड क्वेश्चन. ओके शिवानी, we go to someone else. Kundu begin. Yes, Maharaj. Pranam Maharaj. No. Maharaj, you have said that the questions are answered in the same paragraph. I have read it again and again, but the concept is clear. इतना clear नहीं हो रहा है. My first. आवाज आ रही है? अच्छा शिवानी बोलो जल्दी बोलो शिवानी. जल्दी बोलो शिवानी. नहीं आ रही आवाज तुम्हारी. हाँ महाराज, next question, page 12. Obviously it's very difficult. Then what to do? What is very difficult? Sir, Swamiji, japa and concentrating one's mind on self. Like if we are doing japa, our attention goes on japa only, the words and the meanings. अच्छा, सपोज तुम अपने भाई का नाम लो ध्रुव, तो तुम्हारा वर्ड नाम माइंड क्या वर्ड के ऊपर जाता है कि ध्रुव के ऊपर जाता है? ध्रुव पे जाता है ना. इसे उसका वर्ड के साथ में मीनिंग पूरी तरह अटैच नहीं हुआ. तुम जब ध्रुव को का नाम लेती हो तो ध्रुव पे मीनिंग अर्थ जाता है ना, वर्ड के ऊपर तो नहीं जाता. महाराज आपकी आवाज थोड़ी अच्छा भाई सुनो शिवानी, आज बंद करो इसको. शिवानी को डिस्कनेक्ट करो. संजय जी प्रॉब्लम हो रहा है. उनको दिक्कत है नेटवर्क की, तो वो बाद में बात कर लेंगे. बाकी लोग से बात करें. कुंडू जी से शुरू किया था आपने. कुंडू को ले लो. हाँ महाराज, my first question, page 422. It is said, in order to meditate on the formless God, we must first consider ourselves to be formless. Since this is not happening to me in my present state, when I sit down for my meditation, should I stop meditating on formless? No. No, Yatishwaran ji was very particular. ऐसा है, अभी बताया ना, एक टेक्निक है, यू बिगिन विद आकाश को ज्योति का करो. ज्योति ने तुम्हारे इष्ट का फॉर्म लिया और ज्योति ने तुम्हारा फॉर्म लिया. अब तुम फॉर्म का इनिशिएट करो, उसके बाद उसको मर्ज कर दो. तो यू आर कंबाइनिंग फॉर्म एंड फॉर्मलेस. फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड इज, यतीश्वरानंद जी बार भी कहते हैं कि यू लुक फ्रॉम योर बॉडी फ्रॉम विद इन. अंदर से अपनी बॉडी को देखोगे तो तुमको लगेगा, यू विल बी एबल टू सी दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर बॉडी. सो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ बिकमिंग फॉर्मलेस. एंड thirdly, Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Every day you must do it. Okay? So I don't think that sometime you must think of महाराज look your body from within. वो कैसे होगा? हम लोग तो बाहर जाके देख सकते हैं.
नहीं नहीं, अब तुम अगर कल्पना करो ना कि तुम देह के भीतर हो, कल्पना हाँ, करो, हाँ, इमेजिन दैट यू आर इनसाइड, ठीक है। ना तब क्या लगेगा तुमको? मैं देह तुम के अंदर से भीतर। देख रहे हो, सोचो कि अपने अपने सिर को अंदर से देख रहे हो। हम्म, अपना एक काम करो ना, एक कपड़ा ऊपर, सिर के ऊपर कपड़ा डाल लो जी। और कपड़े को फिर अंदर से देखो, हम्म, गेट इनटू, अच्छा, एक प्रैक्टिस करके देखो। अच्छा, उसी अच्छा। प्रकार हमने बॉडी का एक कपड़ा डाल रखा है हमारे ऊपर, हम्म, तो उसके अंदर से उसको शरीर को देखने का प्रयत्न हो सकता है। महाराज ठाकुर जी ने जैसे कहा कि खोल, वो जो हाँ कवर, ऐसे आप बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, अच्छा, वैसा ही कर रहा हूँ। अच्छा, जी यही बोल रहे हैं, लुकिंग फ्रॉम बॉडी फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, ठाकुर तो अच्छा। बोलते हैं ये क्या है, ये ये शरीर खोल तो है, खोल ही तो हाँ, है। हाँ। हम्म, तो अब उसको महाराज, प्रैक्टिस में कैसे लाना? हाँ, प्रैक्टिस में या तो कैसे विचार लाना? के द्वारा पता कर लिया कि ये खोल है, या फिर हम्म, सोचो कि हम इसके भीतर है, भीतर से देख रहे हैं। ये इस हम्म, आर्टिकल में यतीश्वरानंद जी बार बार बोलते हैं, सीइंग फ्रॉम विद इन। हाँ, हाँ, इस सीइंग आर्टिकल फ्रॉम आउटसाइड तो भी थोड़ा प्रैक्टिकल है हाँ, महाराज। हाँ, वही। सीइंग फ्रॉम very आउटसाइड। everyone must be repeatedly read it. हम्म, महाराज, हो गया हो महाराज, गया तुम्हारे? हाँ। जो बॉडी को जब आउटसाइड से देखना वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल है, पर इनसाइड से तो बहुत मुश्किल है। So that is what is to be practiced, है ना महाराज? That is true. कोशिश तो करो। इस आर्टिकल में repeatedly she is telling about it. जी, जी। Maharaj, next question, Maharaj, page 426. We are told not to take the finite forms as the divine. But when we are connected the finite and the infinite, we are doing so by considering that the finite is also coming from the divine. Then why should we not take it as divine? ना देखो, अभी तुमने एक राम का या कृष्ण का या रामकृष्ण का एक रूप ले लिया, फाइनाइट। Yes. उसको अगर आप मेडिटेट करते हो तो ये नहीं डिवाइन नहीं हुआ, ये फिजिकल हो गया, ये फाइनाइट फॉर्म हो गया। अच्छा। लेकिन रामकृष्ण जो है, ये सच्चिदानंद परमात्मा जो है उसका विग्रह है, उसके अंदर से वो निकले हैं, is come out of it and has appeared before you at that form. Now you meditate, it is all right. Again I tell you, जैसा यतीश्वरानंद जी को मैंने एक्चुअली सुना है, वो जब डिसाइपल्स को, इनिशिएटेड डिसाइपल्स को बोलते थे तो कहते थे कि कंसिडर दैट एवरीवेयर देयर इज अ लाइट। अब आत्मा और परमात्मा को लाइट के सिवा तो आप कैसे कर सकोगे ना, कॉन्शियसनेस की लाइट है। Yes. उस लाइट ने तुम्हारे इष्ट का रूप धारण किया है और तुम्हारा रूप धारण किया है। अब तुम उस इष्ट का ध्यान करो। So the background of the infinite must be there, otherwise it becomes materialism. Okay. वो देहात हो जाता है और कुछ नहीं होता। अच्छा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस आर्टिकल में बार बार इस बात को कहते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। We are told not to take the finite form divine नहीं हुआ, but finite is coming from the infinite. That is why it's a manifestation of the divine. If it is manifestation, then it is infinite. Okay, Maharaj. But finite itself is not infinite. Yes, Maharaj. Okay, Maharaj. Yes, Maharaj. Pranam, Maharaj. Understood. Okay. चलो सतीश वेग। प्रणाम महाराज, प्रणाम। भाई बोलो। महाराज, first question, page 428. By intensely concentrating the mind on the nature of the real self, one can awaken in oneself the forgotten memory of the self. But intensity of concentration should be there. And this is not possible unless we have previously purified our mind. Without intense dispassion for the world and its pleasures, one cannot tune one's whole mind towards the Atma. Hence, the great emphasis is laid on purification and dispassion.
Since we have deep identification with the body and the mind, the method prescribed for transcending the idea of personality is that we must keep the idea that we are aspirant or devotee, but along with this idea, a certain amount of self-analysis is absolutely necessary. Since we are not able to follow the path of out and out self-analysis, we must follow the mixed path. We should worship the divine, looking upon ourselves as devotees, and also try to analyze our personality to the self and the non-self, consisting of gross and subtle bodies, and then try to identify ourselves with the self, drawing ourselves away from the non-self. Maharaj, this is the double process of worship and analysis to be followed by all. Maharaj, this is the mixed process of double process to be followed. Maharaj, my question is, how can the double process of worship and analysis be practiced at the same time? हम वर्शिप भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं. सारी जिंदगी दो डबल ट्रिपल प्रोसेस करते रहे से संसार में बिजनेस भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, सारे संसार में डबल प्रोसेस करते रहते हैं. हमारे माइंड को एक नहीं 10 बार 10 में डिवाइड करते हैं. बराबर जब मेडिटेशन कर रहे हैं तब मेडिटेशन के समय केवल मेडिटेशन करोगे, उस समय एनालिसिस नहीं करना है, बट सेम डे डिफरेंट टाइम दूसरे समय में जब ध्यान करोगे तो ये सोचो कि मैं परमात्मा ने ही मेरे इष्ट का रूप ध्यान किया है, जैसा अभी बताया, और मैं भी परमात्मा का रूप हूँ. ध्यान करो और विलीन कर दो. और दूसरे समय में चिदानंद रूप शिवोहम ये दूसरे समय में करना. या एनालिसिस भी करना हो तो शिवोहम मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं देखने वाला हूँ, ये शरीर जो है मेरे जरा ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ. ये सब एनालिसिस जो है ये दूसरे समय करोगे, एक ही समय में एक दिन में नहीं करना. जी महाराज. भजन भी गा सकते हैं हम, तो भजन गाना और ध्यान करना अलग हो गया. विचार और ध्यान करना अलग हो गया. या जूम मीटिंग हो रही है और तो ध्यान से अलग हो गई. तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं करना. एक साथ जी महाराज. महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन then arises, what should we do that idea of the next question, page 426. So if you are able to connect the infinite and the finite and look upon the finite as a manifestation of the infinite, that meditation is something very grand. But the finite must never be taken as divine. The aspirant has to see the divine standing at the back of all finite forms, but he should not take the finite forms as divine. ये question अभी हो गया महाराज. My question is, उसमें केवल ध्यान के समय नहीं, आपके सामने अगर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ तो भी वो सोचो कि ये फाइनाइट फॉर्म है, इसके पीछे भी परमात्मा है. संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनके पीछे भगवान है, इन्फिनिट परमात्मा है. एक कुत्ते के पीछे, गाय में भी फाइनाइट के पीछे परमात्मा है. ये ध्यान करना चाहिए. अच्छा सर, आगे चलो. महाराज जो धारणा होती है जब हम ईस्ट का ध्यान करते हैं कि ही इज इनफिनाइट, देयर इज एन इनफिनाइट बिहाइंड इट, देयर शुड बी अ धारणा अबाउट इट. धारणा होनी चाहिए हमारे मन में. तो धारणा तो इसलिए तो नहीं, पहले अच्छी तरह समझ तो लेना पड़ेगा ना उसको. इसीलिए तो बार बार ये आर्टिकल करने का अर्थ क्या है, पहले बार बार विचार करके उसको इतने लंबे लंबे आर्टिकल करके हमारे मन में एक धारणा हो जावे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा भिन्न है. ये धारणा हो गई. अब ध्यान करोगे तब उसी के अंदर मन को लगाओगे. मतलब जो विचार की प्रोसेस से होती है, ये धारणा जो होती है विचार की प्रोसेस. ये विचार के द्वारा एंड में धारणा होती है. ठीक है जी महाराज. महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, पेज 431. We become purer and purer to the extent our identification with our body becomes less and less.
these two, purification and detachment, go side by side. It is a case of parallel growth and not of a vicious circle. महाराज ये नहीं समझा मैंने as to what is the vicious circle in this process. Vicious circle की बात की उसमें, vicious circle कौन सा है? एक मिनट जरा आवाज हो रही। ये देखो डिटैचमेंट एंड प्यूरिफिकेशन दो की बात हो रही है। दो की बात हो रही है, इसमें विशेष सर्कल की क्या बात हो रही है? मैं ये नहीं समझ पाया। नहीं ऐसा नहीं कि डिटैचमेंट होगा तो प्यूरिफिकेशन होगा, फिर प्यूरिफिकेशन होगा तो डिटैचमेंट होगा, फिर डिटैचमेंट होगा तो प्यूरिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ होंगे। एक साथ क्यों? दूसरे नहीं, जी जी जी, प्यूरिफाई करते रहो आपको और उसके साथ में डिटैचमेंट भी करते रहो, ये दोनों एक साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार डिटैचमेंट किया फिर प्यूरिफिकेशन किया, फिर डिटैचमेंट किया फिर प्यूरिफिकेशन किया, ऐसा नहीं, दोनों एक साथ चले, पैरेलल चलेंगे, विशेष सर्कल नहीं है नहीं। महाराज ये लास्ट क्वेश्चन मेरा, सेकंड पैरा ऑफ पेज 422, by trying to look at the body from inside and thinking of the spirit animating it, we may look at the face also from within. It becomes easier for us to see the divine in each form by approaching it in a spirit of veneration. Maharaj, how can we see the divine in each form by looking at the face from within? हम अपने में भी जैसे आपकी कही वो तो करना पड़ेगा। तो डिवाइन अगर अंदर से देखने में क्या होगा, मैंने कहा था अंदर में। अभी संजय भाई किसी का म्यूट नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा। मास्क जैसा पहनते हैं ना। यस, अभी मैंने मास्क पहन रखा है और दूसरे ने मास्क पहन रखा है, सबने मास्क पहन रखा है, उसके पीछे क्या है? परमात्मा ही है, आत्मा ही है। ठीक, That's the point. इसका विचार करना पड़ेगा। नहीं, ये समझ में नहीं आया महाराज, पूरा सुनाई भी नहीं दिया, फिर से बोल पाए तो अच्छा रहेगा महाराज। ऐसा है कि ये बार बार महाराज बोल रहे हैं अंदर से देखना। अंदर से देखना मतलब क्या? मतलब ऊपर अगर हमने अपने ऊपर एक चादर डाल ली हो, तब हम अंदर से देखते हैं ना कि हमारे ऊपर एक चादर पड़ी हुई है जी, ये चादर अलग है और मैं अलग हूँ। उसी प्रकार ये शरीर भी एक चादर है जी, उसके अंदर मैं हूँ। तो अंदर से ये सोचना है कि मैंने एक शरीर रूपी चादर पहन रखी है। राइट। मेरी नाक है तो मैं बाहर से नहीं देख रहा हूँ, नाक को अंदर से देख रहा हूँ। मेरे दांत को अंदर से देख रहा हूँ जी, सारे शरीर को मैं अंदर से देख रहा हूँ। तब मैं क्या हुआ? मैं शरीर से अलग हो गया, मैं आत्मा हो गया। हाँ, ये दैट इज द आइडिया। इसी प्रोसेस से मन और बुद्धि को भी देखना पड़ेगा, मन और बुद्धि को भी इसी प्रोसेस से कि बुद्धि भी मैं महाराज एक नहीं, मन को भी देखना है, बुद्धि को भी देखना है, अहंकार को भी देखना है। महाराज एक प्रॉब्लम है, ऐसे सटल जब थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे पहले सोच लिया कि मैं मतलब बाहर अंदर इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द बॉडी और ए फिजिकल बैरियर। अब मैं अंदर चला गया, अंदर से मैं खुद को देख रहा हूँ, उतना तक समझ में आ गया। फिर मैं सोचा ये बॉडी है ही नहीं। अच्छा, बॉडी जब नहीं रहेगा तो अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। अंदर बाहर जो डिफरेंस था वो बहुत अच्छी बात है। अगर सचमुच हो गया तो कोई मैं कौन है, मैं चैतन्य हूँ तो अंदर बाहर एक ही तरफ हूँ, मैं ही हूँ। उस टाइम में हमारा दिमाग घूम जाता है, मतलब उस टाइम में as if mind is stopping after that, मतलब ये प्रॉब्लम है। नहीं, there is only one Atman, that is true। अंदर जब अंदर बाहर ही नहीं है तो there is one Atman, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो चला गया। 1-2 सेकंड से ज्यादा ऑब्जेक्ट था, रह सकते महाराज, यही प्रॉब्लम था, अहंकार था। अरे ये पंचकोश थे ना, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये पंचकोश ऑब्जेक्ट थे, उसके पीछे तो आत्मा ही है। यस महाराज। The moment you go, very good, it is very good that you go to Atman and you say nothing else is there. Yes महाराज। You have to remain established there, repeated, do it. Okay. Then you will see, भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
यस ठीक तो है। अरे कुछ सेकंड के लिए, जैसे उन्होंने कहा कुछ सेकंड के लिए होता है, उसके बाद हमारा दास अभ्यास जो है वो बहुत पुराना है। अब क्या करोगे? महाराज इस स्थिति में एक्सपीरियंस क्या होगा? What we will होगा तब experience? हमको आप खुद ही बताओगे, हमको नहीं, तुम अब जब बताओगे हमें ये हमको, हम क्या बताएंगे? नहीं, इस स्थिति में कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है। इस स्थिति में मतलब उससे जब फिर चौंक जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि कहाँ क्या हो गया था, मतलब यानी that is कोई the बात stage नहीं, of चलने दो। experienceless. चीनी चीनी कैसा है, खाने से ही पता एक्सपीरियंस जो चलता है है। वो बोला नहीं जा सकता उसको। राइट जी, सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं। जी। अच्छा आप दिल्ली था, आ जाइए मैदान में। जी महाराज आ गए। हाँ महाराज, पहला क्वेश्चन मेरा पेज 418 पे है। Here in the Hindu worship, from whom praying for forgiving me for these threefold faults committed by me. Here Lord of Universe means Jagdish. ये हिंदी में लिखा है Jagdish, the name of Lord Krishna. This is so there is a form and not a formless. नहीं क्या हुआ? अच्छा वो कहते हैं कि हे प्रभु आप तो फॉर्मलेस है, मैंने फॉर्म की कल्पना की, आपके नाम रूप नहीं है, आप मैंने स्तुति की, और आप तो कहीं पर नहीं हो, लेकिन मैंने तीर्थ यात्रा की, तो इन तीन प्रकार से मैंने आपको सीमित करने का प्रयत्न किया है जगदीश, मेरी इस गलती तीन दोषों को क्षमा करना। रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो, बहुत सुंदर श्लोक है ये। हाँ, प्रभु जगदीश मना कर। ये जगदीश कौन आपका ये कहना है, हैं? ये जगदीश ये मुझे जगदीश माफ करो। ये प्रश्न है आपका, हैं? यहाँ लिखा है जगदीश मुझे माफ करो, तो ये जगदीश कौन है? हाँ, जगदीश इज द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण, सो देयर इज अ फॉर्म, दैट इज माय। क्यों जगदीश का आपके मतलब कैसे लग गया? जगत का ईश्वर, परमात्मा, जगत का ईश्वर, जगत ईश जी, जगत का ईश्वर। तो उसका फॉर्म क्या? उसने सृष्टि स्थिति प्रलय की है जगत की, तो वो तो बनाने वाला है जगत ईश्वर जी। उसको आप उसको जगदीश बोल रहे हैं, आप फॉर्म क्यों बनाते हो उसको? ओके जी। और जहां तक कृष्ण की बात करते हो तो कृष्ण ने कितनी बार कहा है, तुम ही लोग मान लिए कृष्ण को, तुम लोग तो झगड़ा करते हो कि हमारे जो है वो द्वारका के कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण नहीं मानते आप लोग। तो अब एक ही कृष्ण के बेचारे के 100 रूप बना दिए और मैं झगड़ा कर रहे हो। और जब कृष्ण तो कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं सर्वव्यापी हूँ, अनेक स्तोत्र मिल जाएंगे। केशव जो कृष्ण जो है वो कई बार कहते हैं कि मैं काल हूँ, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला मैं भी हूँ। गीता में पढ़ लो कितनी बार भगवान कुछ कई बातें कहते हैं। जी, जी। तो उसको तो तुम मान ही गए, वो एक कृष्ण एक रूप वाला कृष्ण ले लिया, वो बंसी भी नहीं है अब तो वो धनुष बाण लेके युद्ध करने वाला कृष्ण बन गया तुम्हारा द्वारका का कृष्ण जी। तो भाई ये ऐसा तो काम चलेगा नहीं। तो जगदीश का अर्थ है सच्चिदानंद, जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला। बराबर, ठीक है जी महाराज। नाउ सेकंड क्वेश्चन, देयर इज नो फॉर्म और एट्रीब्यूट बट देयर इज सुप्रीम लाइट, देन व्हाट इट इज? इट इज अ सिंबल, so again it is a form. In Brahma Kumaris there is also a point or bindu for meditation, so where is the formless? आखिर में बताया ये जाता है कि बिंदु पे ध्यान करो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। देखो अच्छी बात, तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मलेस चीज है ना, हम उसका कल्पना नहीं कर सकते जी। मानव मन जो है फॉर्मलेस की कल्पना नहीं कर सकता। yes. अब ज्यादा से ज्यादा क्या किया? आकाश। हाँ। समझे ना, ध्यान करो आकाश का, वो आकाश भी नहीं कर पाते। तो इसलिए सोच कहते हैं हाँ। 3-4 इसी आर्टिकल में 4 प्रकार के फॉर्मलेस मेडिटेशन बताए गए। जी। अपने को पक्षी समझो और सच्चिदानंद आकाश में तुम उड़ रहे हो। हाँ। अपने को मछली समझो, तुम जीव जो है मछली है, सच्चिदानंद जो है वो समुद्र है। जी। एक घट है, बर्तन है, वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, चारों तरफ पानी है, अंदर भी पानी है। ये वह है निराकार ध्यान होगा। और एक ज्योति है, सर्वत्र ज्योति है, उसमें एक लाइट जल रही है।
तो ये 4 रूप निराकार ध्यान को सो कॉल्ड निराकार ध्यान में कहूंगा, क्योंकि बिल्कुल निराकार नहीं हो सकता। एक वास्टनेस, विशाल के अंदर एक आत्मा का चिंतन इस प्रकार किया जाता है। इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। बराबर। ठीक है दिलीप भाई जी। अब महाराज इसमें मेरा सवाल ये है कि अंधेरी रात्रि में कमरे में यदि आप बैठते हो तो उस समय आंख खुली हो या बंद हो, कुछ भी दिखता नहीं, उस समय ये निराकार की भावना आ जाती है ऑटोमेटिकली, यदि हम समझे तो करो ना, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये निराकार तब दिखता है कि कोई आकार ही नहीं है, जब कुछ हम अंदर से समझते ना बाहर से समझते। नहीं तो ये निराकार होगा क्या? तो आंखें बंद कर लोगे तो क्या होगा? आंख बंद करोगे तो तुम्हारा सामने का कमरा उमरा तो सब गायब हो गया। नहीं, तुम भी गायब हो आंखें गए। बंद कर, नहीं आंखें बंद महाराज जी, नहीं आंखें बंद करने के बाद, नहीं आंखें बंद करने के बाद आपने बताया कि ये 4 तरीके से निराकार होते हैं। मछली बन जाओ, पक्षी बन जाओ, बिंदु में। नहीं, तुम जो बोलते हो हाँ। कि आंख बंद करने से ही तो हो जाएगा, यही तो बोल रहे हो ना? नहीं, मेरा ये कहना, अंधेरे कमरे में बैठे हो उस वक्त आज आंख खुली हो या बंद हो, कुछ दिखना ही नहीं है, दैट्स अ निराकार। बंद है। अरे मैं निराकार की एक्सट्रीम हो गई ना। नहीं, मैं तो इसके आगे भी जा रहा हूँ। कमरे की बात क्यों करते हो? जी जी, आंखें बंद कर लो ना, एकदम आंख बंद कर लो तो वो अंधेरा हो गया तो कमरे को बंद करने की तकलीफ, करने की दरवाजा बंद करने की तकलीफ नहीं है। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर दो, निराकार हो गया तो बराबर जी। कि नहीं हुआ? बोलो। तो फिर नहीं हुआ महाराज। आंखें बंद करके कहाँ निराकार हुआ? आंखें बंद करने के बाद सैकड़ों आकार मन में उठता है, नीचे जाता है, डूबता है, होता ही नहीं है। और बड़े आकार आते हैं मन में, दुनिया भर के आकार उठते हैं मन में। नहीं, दिलीप भाई बोलते हैं कि कमरे में बैठ के अंधेरा कर लोगे तो निराकार हो जाएगा। नहीं होगा, मन नहीं बंद हुआ। इसका क्या जवाब है? तब भी तो तुम्हारा मन बना रहेगा ना, मन से बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। जी बिल्कुल, वो हाँ, मन ब्लाइंड नहीं होता है। हाँ, मन नहीं तो पाजी है। चलो तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, if non-dualism is a must for monks, then as per the article, for most people millions of years to attain that stage. My question is, how a person takes manushya janma again and again for thousands of years, because his karmas will not give him manushya janma every time. नहीं तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि इसमें ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि यू हैव टू टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू अटेंड मोक्ष, परंतु मनुष्य जन्म हर बार थोड़ी मिलेगा, और जब मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा तो हम मोक्ष की ओर आगे कैसे बढ़े? वो अब तुम अपने यदि कर्म अच्छे रहेंगे तो मनुष्य जन्म वापस मिलेगा। अच्छा, एवरी टाइम वी विल हैव अ मनुष्य जन्म। हाँ, ऐसा बुद्ध का पढ़ो, बुद्ध के बहुत सारे जन्म हुए थे जी, कुछ अच्छे हुए थे, कुछ जन्म पशु जन्म भी हुए, तो उसमें भी वो बुद्ध जैसे ही थे। तुम्हारी जो प्रकृति, वास्तविक प्रकृति, वो सदा बनी रहेगी। कर्म कटने के लिए पशु जन्म हुआ, उस कट के बाद फिर मनुष्य जन्म हो जाएगा। अच्छा जी महाराज, राइट। नेक्स्ट सवाल, हाउ टू एनालाइज आवरसेल्व्स? हाउ कैन वी थिंक अबाउट आवर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी व्हेन वी आर अलाइव? अभी हो गया ये। नेक्स्ट, first we have to develop the personality. What type of the personality and how to develop? Is it possible by chanting I am Brahman, I am Brahman, aham brahmasmi, aham brahmasmi? ये chanting करने से personality develop होती है क्या? ये चेंजिंग करने से पर्सनालिटी का नाश होता है। पर्सनालिटी डेवलप होती है स्टडी से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से। स्वामी विवेकानंद ने जैसा कहा है, मैन मेकिंग एजुकेशन करो, हाँ, ज्ञान करो, पढ़ाई लिखाई करो, एकाग्रता करो, एक्सरसाइज करो, इससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। लेकिन जो आप मेडिटेशन की बात करते हो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाहम, उससे पर्सनालिटी सब दूर होती है। मैं यदि मोटा आदमी भी हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, तो भी मैं
महाराज बंद हो गया, म्यूट हो गया महाराज। महाराज म्यूट हो गया महाराज आपका म्यूट हो गया जी। फिर से रिपीट करें महाराज, सेंटेंस बंद हो गया था। और वो ये सब एक फोन आ गया था इसलिए बोल रहा हूँ। ओके वो क्या है हाँ कि जैसे ये पर्सनालिटी डेवलप होती है हमारी नाना प्रकार से, पढ़ाई लिखाई से, लोगों के सत्संग से जी, अभ्यास से, एक्सरसाइज से, जी ये कई प्रकार से पर्सनालिटी व्यक्तित्व डेवलप होता है। हाँ तो उसके बाद में उसको डेवलप करने के बाद में फिर विलीन करना पड़ता है विचार के द्वारा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं पर्सनालिटी नहीं हूं। प्रश्न ये हो जाता है लोगों के सामने कि फिर पर्सनालिटी डेवलप क्यों करना। हाँ ये सवाल है, और उससे तो अहंकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है। हाँ अहंकार आएगा, इसके बाद में अहंकार को वलयन करना पड़ेगा जी। और कुछ नहीं करो, बैठे रहो ना, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ूंगा तो मेरे को अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी और मैं अपने आप को बुद्धिमान समझने लगूंगा। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन नहीं। अरे तुम्हारे पास पर्सनालिटी तो है ही नहीं, क्या क्या किसको विलीन करोगे। भिखारी तो है और कहता है कि मैं सन्यासी बनूंगा। अरे करोड़पति बनो, उसके बाद सब कुछ त्याग करो, तब तो सन्यासी बनोगे। भिखारी होगा कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा। अरे कुछ है तो नहीं, क्या त्यागोगे। यानी डेवलपमेंट आपको करो, उसके बाद में सर्वस्व का त्याग करो। ओके राइट, ये दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे कह रहे हैं। राइट महाराज, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरा सवाल था, दैट द सब हेडिंग जो दिया है, स्टेप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेप्स नहीं है, स्टेट्स नहीं, स्टेप्स नहीं, स्टेप्स है, STATES है, गलती टाइप। नहीं नहीं, STATES। हाँ वही है, वो गलत हो गया था टाइप जी। हाँ ठीक है। हाँ यस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मेरा समझ में नहीं आता है। क्या समझ में नहीं आया वो ये है, कॉन्शियसनेस दो तरह की बताइए, सोल एंड इनफाइनाइट। फिर लिखा है फील द इनफिनिट। सोल के अंदर दिस है दैट यू फील द इनफिनिट। इनफिनिट में लिखा है फील द सोल, एंड व्हेन सोल में लिखा है इट इज लाइक अ पॉइंट, और इसमें लिखा है गॉड इज इनफिनिट। तो इसको कुछ एक्सप्लेन कर दे महाराज। वो ऐसा है कि जो स्टेप्स है ना, उसमें स्टेजेस, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में हाँ, स्टेप्स हमारा मन किस लेवल पे रहता है। हाँ, उसमें कई प्रकार से स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है जी। जैसे पहला है सोल, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो स्टेट्स स्थितियां, हाँ, तो एक प्रकार से होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन ऐसी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सो गए, कुछ भी नहीं रहा, वो कॉन्शियसनेस में वो केवल अज्ञान पड़ा हुआ है। उसके बाद में जब स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न देख रहे हैं, जागृत नहीं है, और जागृत अवस्था है तो स्वप्न नहीं है। ये हाँ, तीन स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हो गए। राइट, उसके बाद में तुरीय हो गया। हाँ, अब चौथा टाइप का है कि स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जब मैं अपने शरीर को शरीर के साथ एक करता हूँ तो मैं अपने को शरीर समझता हूँ। मैं मन से चाहत करता हूँ कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, तो मैंने अपने आप को मन के साथ एक किया है। जी, अहंकार हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा, बहुत बुद्धिमान हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो ये जो है, ये शरीर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे पंच कोशों के साथ युक्त होने पर स्टेट्स हो जाती है। तो इतने बहुत सारी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। हाँ, तो इसके बारे में, इसको आगे अब बढ़ो। अब क्या है, इन स्टेट्स के परे जाना है हमको। क्या हाँ, बोला है आगे बढ़ो, क्या बोला है। हाँ, महाराज ये लिखा है, we have got two forms of consciousness. We make the soul the center of our consciousness and feel the infinite in that, or we make the infinite the center of our consciousness and feel the soul as a manifestation. पहले ये फील करो, स्टेट्स नहीं, सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। देखो, अच्छा, ये तुमको बताना है, सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये दूसरा क्वेश्चन है। सेंटर एक माँ है ना, हाँ, उसका सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है बच्चा। यस, पूरा अच्छी तरह लगा हुआ है। हाँ,
बनिया है उसका सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है रुपया पैसा, ओके। जी अच्छा, जो पॉलिटिशियन है उसका सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है पावर जी। वो पावर के लिए पैसा भी छोड़ देगा लेकिन पावर नहीं छोड़ेगा। यस। और बुद्धिमान व्यक्ति है तो अपना इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। यस। हाँ। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। यहाँ पर उसको दूसरे प्रकार से कहा गया है। सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस में पहली बात यह है कि व्यक्ति अपने को आत्मा समझता है। मैं अपने आप को शरीर नहीं समझता हूं, मैं आत्मा समझ रहा हूं। ये यदि हो जावे तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा है सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। अपने पुत्र के बदले मैं अपनी आत्मा को समझता हूँ, सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है। और कोई सोचे कि नहीं परमात्मा ही सब कुछ है, मैं सारा मन परमात्मा में लगा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। ये दो प्रकार के सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बोलो तुम्हारा प्रश्न कहाँ है? हाँ, सेंटर अब ऑफ ये कॉन्शियसनेस तुमको समझ में आ नहीं, गया? अब इसमें ये लिखा है कि इफ यू think that your center of consciousness is soul, then you go to infinite. And if you think first the infinite is your center of consciousness, then you go to the soul. ये है तो ये करे और ये है तो ये बताए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, वो दोनों सच पूछा जाए होता नहीं है। दोनों में कॉन्शियसनेस ही सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है। लिमिटेड कॉन्शियसनेस या व्यापक कॉन्शियसनेस। कौन से पेज पे है देखो, बताओ तो। महाराज 423, पेज नंबर 423, लास्ट 2 लाइन्स, आखिरी की 2 लाइन है। एक मिनट बताता हूँ जी। वी हैव गॉट 2 forms of consciousness. पेज 23। हाँ, 423 के आखिरी 2 लाइन है। I am neither human body being nor God nor demigod. नहीं, we have to go. ठीक है। We have got 2 forms of consciousness. Yes. We make soul the center of consciousness and feel the infinite. Yes. That. Or we make infinite the center of consciousness and feel the soul manifesting infinite. Yeah. Making our soul the center of consciousness, feel the infinite like a circle around us. Or making the infinite center of. Every soul is like a point and God is like an infinite ocean of light. Yes. Joining every point circle. In this beginning, all this may be imagination, but ultimately it becomes an experience. Now, don't worry about that. इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई आदमी अपने आत्मा को सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस बनाए, कोई परमात्मा को बनाए, अल्टीमेटली वो सब एक से हो जाता है। ओके जी। अब मेरे दूसरा सवाल है महाराज, व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच आर द फाइनाइट, द लिटिल, द प्रेटी, the small over which we should not concentrate? ये क्या चीज है कि जिस पे हमने है, जॉब है, पैसा है, बिजनेस है। Don't waste time on this. अच्छा ठीक है जी। और उसकी जगह पे ठीक नहीं है इसीलिए चुप हो गए। इतना आसान नहीं है महाराज। ये सारी सब पेटी थिंग्स है, छोटी चीजें हैं। देह, जॉब, पैसा, बिजनेस, सारा जीवन तो इसी में चला गया, सारा वेस्ट टाइम इसी में हो गया। यही बता रहे हैं कि मत करो ऐसा। अच्छा। और महाराज इसके आगे जो ये लिखा हुआ है कि वास्ट द इन्फिनाइट, द स्टार्स, द सोलर सिस्टम, द मिल्की वे, यानी दिस इज, ये क्या, कौन सा पेज नंबर? वो पेज नंबर 425 का 4th पैराग्राफ है। Instead of thinking of the finite, the little, the pretty, the small, it is better to think of the vast, the infinite, the stars, the solar system, the Milky Way. अनंत को जानना, यानी छोटी छोटी चीजों के बदले बड़ी चीजों को सोचना अच्छा है। हाँ। और उसके बाद में कहते हैं एंड डिसॉल्व एवरीथिंग, दिस अर्थ, दिस स्काई, सोलर सिस्टम्स इनटू इन्फिनिट। यस। सबको एक आसमान में खूब डालना है। तो अल्टीमेट चीज है, उसको ध्यान रखो। किसी भी प्रकार से हो सकता है, बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है। यस। ठीक है महाराज। तो ये जो चीजें, ये सब ईश्वरीय चीजें हैं या ब्रह्म है, ये हमने समझ लेना। तभी ब्रह्म
हाँ, ये ऐसा है कि अपने चित्त को मान को विशाल करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये विशाल होने के लिए है। हाँ, अब जैसे आप बनारस में, तो बनारस में आप कमरे में रहें तो एक बार रोज जरा काशी में गंगा में चले जाएं। जी, तो गंगा में जाएंगे तो विशाल है, वहां पे उसके सामने मैदान पड़ा हुआ है, तो हमारा मन थोड़ा विशाल हो गया। महाराज कमरे में रहने के बदले बाहर आ जावे, आकाश को देख लेवे। हाँ, ये मेरा पूछना ये है कि क्या हमने रोज एक बार ये कोशिश करना चाहिए कि आकाश को देखे अर्ली इन द मॉर्निंग और इन द नाइट एंड टू थिंक अबाउट द गॉड कि ये तेरे द्वारा क्रिएशन किया गया है। हाँ, वो आकाश को देखो पर ये सोचो कि ये परमात्मा है, सर्वव्यापी है। हाँ, ये तेरे द्वारा क्रिएट किया गया है। यस, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, राइट, बराबर महाराज जी। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे महाराज? रविंद्रनाथ ठाकुर का जो गाने हैं ऐसे ही है, बहे बहे निरंतर अनंत धारा, मीन्स ऑल वास्ट, ही इज इन दैट सॉन्ग ओनली। क्या 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 कौन सा? रविंद्र संगीत इज देयर, बहे निरंतर अनंत धारा। जी, तो ऑलवेज कीप योर माइंड इन द अनंत ओनली, दैट सॉन्ग इज ब्यूटीफुल मीन्स। जी, हाँ महाराज, मेरा नेक्स्ट सवाल है। महाराज कहाँ है? महाराज बोलो। आपने बोला तो महाराज चले गए। नहीं, आ गया मैं। अरे वाह, नहीं, हम संजय रविंद्र धारा में वीडियो ऑन। अच्छा, हो गया। जी जी महाराज, ऑडियो ऑन हो गया। हाँ, फोन आया था ना, एक फोन आया था, किसके सारा मालूम है? नहीं, आवाज नहीं आ है जो सन्यासी आवाज नहीं आ रही है, और शारदा मठ में एक बड़े आश्रम की सेक्रेटरी है, निर्वाण प्राणा, उसका फोन आया था। अच्छा, ओहो जी, हाँ महाराज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वन डू जप एंड साइमल्टेनियसली कॉन्सेंट्रेट one's mind on the self? तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, अभी थोड़ा तो आपने बताया था। तो हो गया है। हाँ, पर वो थोड़ा बताया था, पूरा क्लियर नहीं हो पाया। ऐसा है ना, वो क्या है कि वो जब करे, और हाँ, वो ऐसा है कि अभी आप देखो, जब मैंने अभी बताया ना तुमको, हाँ, कि अगर जिसका नाम लेके जप करोगे तो उसका भाव अपने आप आ जाएगा अपने मन बराबर में। जी, तब कृष्ण कृष्ण करो तो कृष्ण का भाव आ जाएगा, हाँ, है ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जी जी, तो उसको फिर कृष्ण जो है, तो कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद है, ये अगर ध्यान करोगे, हाँ, मन में बिठा लोगे अच्छी तरह विचार के द्वारा, जी, तो जब कृष्ण का नाम लोगे तो वहां सच्चिदानंद आएगा, कृष्ण नहीं आएगा। ओके जी, बराबर जी जी महाराज। ऐसा जैसे पहले अशोक के नाम से तुम्हारा दोस्त आता था। हाँ हाँ, आज स्वामी जी आते जी। हाँ, बराबर, बहुत फर्क आया, बहुत फर्क है महाराज। एग्जाम्पल बस कृष्ण का नाम से जो है ना, अभी कृष्ण का रूप लेके फंसे हुए हैं सबके सब जी, और जहाँ तक वहीं के वहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, वो कोई नहीं सोचता जी, वो मछली वाले कृष्ण सोचते हैं और मस्ती करते हैं कृष्ण को लेके। हाँ, लेकिन कृष्ण तो है सच्चिदानंद स्वरूप है, कोई नहीं सोचता जी, एक ही नाम के अलग रूप अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। राइट जी महाराज जी। अब एक आखिरी सवाल है, आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल आई अंडरस्टैंड there is very little difference between dualist and non-dualist, as the ultimate goal is Ishwar Prapti or self-realization. This is, am I correct? ये आखिरी है। हाँ, ये आखिरी का सेंटेंस आर्टिकल में लिखा हुआ है। So really speaking, the infinite thou is the same as this infinite I. Both leads the same ultimate realization. Only the way of expressing it is different. So also it is the approach. नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना है कि आज आप ड्यूअलिज्म की करोगे मेथड करोगे, कल निराकार की करोगे मेथड, ऐसा मत करना जी। एक कोई पकड़ना है जब तक नहीं पहुंचो। ओके
ये तो केवल थियोरेटिकल बात है कि भाई सब पथ जो हैं वहीं ले जाते हैं, ये तो सब हाँ। जानते हैं। जी सभी पथ जो हैं एक ही स्थान पर जाते हैं, ये सब जानते हैं। जी लेकिन आज एक पथ पे जाएंगे, दूसरे पथ से दूसरे दिन दूसरे पे जाएंगे, ऐसा मत करना। जी 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 महाराज, अपना बराबर। पथ पकड़ के रखना। जी जी, बस बस महाराज, बस प्रणाम। अच्छा भाई, महाराज सपना जी मुखर्जी। ड्यूरिंग महाराज जी एक चीज पूछूं महाराज जी? बोलिए, जल्दी बोलो। महाराज जी, हमारा इनिशिएशन का टाइम पे बोला गया है कि ठाकुर जी निराकार है, तभी भी ये रूप धारण किया है क्योंकि हम इसको इसी रूप में देखना चाहते हैं। तो इसी सेम थिंग एज द फाइनाइट टू इनफाइनाइट, पर्सनल टू इम्पर्सनल। नहीं, वो तो हो गया ना, डिस्कशन हो गया। डिस्कशन नहीं, अभी जो दिलीप भाई ने सवाल किया ना कि नहीं, आपने बताया कि एक question तो जंप मत करो, ये तो No, हमें no, तो no, एक्चुअली कंटिन्यूएशन, नहीं, इट इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस। नहीं। हिज क्वेश्चन इज कि ड्युअलिज्म और नॉन ड्युअलिज्म ये दोनों एक ही लक्ष्य पे ले जाते हैं। मैंने कहा हाँ, देख ले जाते हैं। योर क्वेश्चन इज डिफरेंट। अच्छा, ठीक है। इट्स ओनली अबाउट द गोल, ही इज टेलिंग वन गोल। अच्छा, योर क्वेश्चन इज वेरी डिफरेंट। अच्छा, ठीक है महाराज, ठीक है, थैंक यू। सपना मुखर्जी। प्रणाम महाराज। महाराज मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया। एक ही है कि ये जो हम कैसे मतलब हाउ टू एनालाइज माई सेल्फ फॉर डिटर्मिनिंग वेदर आई एम रेडी फॉर द मेडिटेशन ऑफ सगुना निराकार, ये जो फॉर्मलेस मेडिटेशन, सो वो भी आपने नहीं, यतीश्वर देखो, यतीश्वर जी तो ऑलवेज सेड दैट बिगिन everyone must do a little of निराकार। जैसा मैंने कहा ना, जी his meditation technique was, वो सगुण का इष्ट ठाकुर का मंत्र देवे या राम का मंत्र देवे, कृष्ण का मंत्र देवे, लेकिन कहते थे कि सोचो पहले बार जहाँ सच्चिदानंद चारों तरफ विद्यमान है, उसने तुम्हारा सौरभ इष्ट का रूप ले लिया है और इसने तुम्हारा रूप ले लिया है। अब ध्यान करो, अब तुम खुद धीरे धीरे जानने लग जाओगे कि अब मैं निराकार में अधिक समय रह सकती हूँ। ठीक है। गॉट माय पॉइंट आंसर? हाँ, ठीक। और ये मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन के टाइम ही करना है ना? नहीं, ये विचार तो हुआ, यदि किताब पढ़ी है तो तुम्हारे बहुत सारा विचार आ गया ना निराकार। हाँ, विचार तो अलग से हम कर सकते हैं, लेकिन जब आप जो मेडिटेशन के बारे में बोल रहे हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन पे तो मेडिटेशन के बारे में है ना? हाँ, वही मतलब जवाब दिया। नहीं, कैन इट बी डन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग मेडिटेशन? No, yes, why can it not? Okay, that is the question. But you must, basically you must not change what your guru has given the instructions. That's it, a basic change must not be done. Okay? Yes. Okay. निवेदिता। जी महाराज, पहला प्रश्न है, हाउ वी विल कम टू नो वेयर इन विच स्टेयरकेस वी आर स्टैंडिंग? पहले तो ये बताओ कि स्टेयरकेस क्या है? स्टेयरकेस आर स्टेप्स ऑफ स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट। हाँ, तो क्या कौन से? मैं 2 स्टेयरकेस बताता हूँ तुमको। एक तो है कि पहला हम रिचुअल से प्रारंभ करते हैं। प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, दूसरा जप स्तोत्रादि, उत्तमा मानसी पूजा, उसके बाद मेडिटेशन, और सोहम पूजा हम उसके साथ एक हो जावे, वो हुआ उच्चतम 4 स्टेप्स हुई। ओके? एक प्रतिमा पूजा, मानस पूजा, नहीं, प्रतिमा पूजा, फिर स्तोत्र जप स्तोत्र, और तीसरा हुआ ध्यान, और चौथा हुआ उसके साथ एक हो जाना, समाधि। अच्छा, दूसरा है, दूसरी स्टेप और देख लो। बोली। पहला है लीला चिंतन। मन चंचल है तो घूमता रहता है, तो क्या किया? सारे वृंदावन में मन को घुमाया, सारे दक्षिणेश्वर में सब जगह मन को घुमाया ठाकुर के साथ में। जी। उसके बाद सेकंड स्टेज आई एक स्थान पे, अब कमरे के बाहर ठाकुर को नहीं ले जाएंगे। तीसरी बार अब ठाकुर के केवल रूप का चिंतन करेंगे। चौथा है ठाकुर के जीवंत रूप को चिंतन करेंगे।
डेड चिंतन का रूप नहीं, जीवंत रूप का चिंतन करेंगे। चौथे लेवल पे सत्ता मात्र, केवल ठाकुर प्रेजेंस मात्र है, डिवाइन प्रेजेंस, और हम भी चैतन्य हैं और दोनों एक हैं, ये आखिरी लेवल हो गया। अब पता लगा लो तुम्हारा मन कहाँ पे रहता है जी, और वहां पे उसको लगाओ। ठीक है, बहुत हो अच्छा। गया? जी महाराज। दूसरा है, प्रश्न है, व्हाट इज द फेट ऑफ सीकर इफ ही डजंट रीच द मोनिज्म बट कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन जप एंड इष्ट चिंतन? हाँ, तो उसके बाद में वो ठाकुर का वैकुंठ अपने ठाकुर का लोक में जाएगा। थर्ड प्रश्न है, व्हाट इज द इनर कांटेक्ट इन इनर कांटेक्ट जो बोल रहे हैं वो हमेशा जैसे फॉर्मलेस में इनर कांटेक्ट कैसे बना रहेगा? व्हाट इज द इनर कांटेक्ट इन फॉर्मलेस मेडिटेशन? मतलब अपने आप को आत्मा समझना और हाँ? आत्मा एक बिंदु की तरह। हाँ हाँ, वो बेसिकली तो आत्मा का कंसेप्ट होना चाहिए ना जी। यतीश्वरानंद जी इसलिए तो बोलते हैं कि सोचो कि परमात्मा है, तुम भी एक आत्मा के रूप में हो। उसके बाद परमात्मा ने इष्ट का रूप लिया, तुम्हारी आत्मा ने भी तुम्हारा शरीर लिया। तो बेसिकली आत्मा का रूप, या मैं एक बिंदु हूँ, एक वृत्त हूँ, ये ऐसा निश्चय लगना चाहिए। समुद्र का चिंतन करोगे तो ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक बिंदु हूँ। We must feel our contact with the Paramatma in some form or the other always. चलो, अब चौथा प्रश्न आपने बता दिया, व्हाट इज लुकिंग फ्रॉम विद इन। पांचवा है, व्हाई वी शुड डेवलप पर्सनैलिटी, ये भी आपने बता दिया है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन वो है, बाय ट्राइंग टू लुक एट द बॉडी फ्रॉम इनसाइड, ये भी आपने बता दिया। अभी मेरा लास्ट प्रश्न है कि जैसे हम निराकार का चिंतन कर रहे हैं कि आकाश में पक्षी घूम रहा है, तो वेयर वी विल एंड, मतलब उसके बाद क्या करने का? वी आर थिंकिंग, मतलब ये तो इमेजिनेशन कर रहे हैं, आफ्टर दैट व्हाट वी शुड डू? ये इसलिए किया गया है हाँ कि हम अपने आप को फिजिकल बॉडी से अलग नहीं समझ पाते हैं जी, इसलिए हमको कहा जाता है कि फिर ये सोचो कि आकाश है, निराकार का ध्यान कैसे होगा जी। तो उसमें एक जीव जो है वो घूम रहा है। हाँ जी, हाँ। और जब स्थिर हो जाएगा, जब अगर मन जब जम जाएगा ना, हाँ। तो वो जो पक्षी है जी, वो उस आकाश में विलीन हो जाएगा। हाँ यही पूछ रही। ओके, बहुत सुंदर महाराज, प्रणाम, हो गया मेरा प्रश्न। इतु घोष। महाराज मेरा भी क्वेश्चन है इसमें, महाराज मैं पूछूं सतीशपुरम। सतीश तुम्हारे क्वेश्चन हुआ नहीं अभी? नहीं, मैं इसी में क्वेश्चन आया था अभी जो आपने कहा कि ठाकुर का ध्यान करने से, रूप का ध्यान करने से, ठाकुर के जीवन का ध्यान करने से, उसमें श्रेष्ठ जीवन का ध्यान होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है, ठाकुर के रूप का ध्यान करने से, ठाकुर के जीवन का ध्यान करने से, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? जो उनके जीवन का ध्यान, जो उनके रूप का ध्यान। हाँ, नहीं, प्रश्न क्या है तुम्हारा? प्रश्न ये महाराज, जो आपने स्टेप्स बताए ना, स्टेप्स ऑफ जो हमारी इवॉल्वमेंट के हैं, तो उसमें ठाकुर के रूप का ध्यान करना, ठाकुर बैठे हुए रूप का ध्यान कर रहे हैं मन में, और एक ठाकुर के जीवन का ध्यान करना, जीवन में साधना की। नहीं, पहला है रूप ध्यान। अच्छा। उसके बाद ठाकुर के गुण ध्यान, और तीसरा है स्वरूप ध्यान। स्वरूप ध्यान मतलब ठाकुर के गुण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जीवन का ध्यान। हाँ जी, गुण 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 का ध्यान। ठाकुर त्यागी है। जी जी जी। प्रेममय है। प्रेम है। ध्यान निष्ठ है, ये हो गया। हाँ जी।
और उसके बाद में है आखिरी लेवल में स्वरूप ध्यान, ठाकुर सच्चिदानंदमय है। उसमें अपने जीवन का बताया ना, उनके जीवन का ध्यान भी करना, वो मैं समझ में आया। लीला चिंतन, लीला चिंतन शुरू में कहा मैंने, वो शुरू में, ठीक ठीक, वो मैं सब कुछ बता रहा हूं। इतु जी प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम महाराज। मुझे तो पहला प्रश्न फ्रॉम द टेक्स्ट, at every step we must be in touch with the divine, whatever be our mood. This inner contact that is more important than the object of form or without form. So question is how to develop this attitude step by step. तो स्टेप बताया ना, देखो इस आर्टिकल में भी मैंने आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वेरियस स्टेप्स जी। आई हैव गिवन यू थ्री वो स्टेप ये हैं, जी। गुण ध्यान, स्वरूप रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान, एक स्टेप। इस आर्टिकल में है सगुण साकार का ध्यान करोगे, उसके बाद सगुण निराकार का ध्यान करोगे और निर्गुण निराकार का ध्यान करोगे जी। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अ नंबर ऑफ स्टेप्स। नाउ योर क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? The question is how to develop this attitude step by step. No, step by step you do whatever wherever you are. हाँ समझे हैं जी, आंसर आ गया जी। When you say जी meditate, ठाकुर के रूप का मेडिटेशन करो जी। उसके बाद ठाकुर के गुणों का ध्यान करना, जी कितने करुणामय हैं, जी, कितने त्यागी हैं, उसके बाद में स्वरूप का ध्यान आएगा जी। या फिर सगुण साकार निर्गुण निराकार, इससे एक ये स्टेप बताओ। इस आर्टिकल को फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा जी। और सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वी मेडिटेट अपॉन द फाइनाइट एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनफाइनाइट, वी हैव बोथ इंटेंसिटी एंड एक्सटेंसिटी. Such a meditation is very grand if done in the proper way. So how to meditate properly on this? ऐसा अभी मैंने कहा ना जी कि when you start meditation you think that सच्चिदानंद is there everywhere. जी वो आकाश है, वो अपने वो ज्योति है, उसने it has taken the form of your Ishta. जी। And now you meditate, so you are remembering that Ishta yani Satchidananda has taken your form. So this is the right method to begin with infinite and then come to finite, meditate for finite for long time, and then afterwards merge your infinite, your finite again into infinite. This is what is called a step by step. Yani when the water has become barf, water has become ice. So form ice is the form. So Nirakar, fire, water has become ice. Water was Nirakar, ice is Fakar. Meditate, and when you meditate, you remember that you automatically know that ice is nothing but water. So in this way, you always remember that your Ishta we are meditating is not finite, it is infinite. जी। और थर्ड क्वेश्चन है thus we learn to combine meditations on the personal and the impersonal aspects of the divine. Over and above this, we should have also monastic meditations in which we try to separate ourselves from all that is non-self, our bodies, gross and subtle. So how to combine these personal and impersonal aspects of the divine and how to develop monastic meditation? Actually, Yatishwaran ji, in this article, I give great importance to this article because we are used to meditate only on the form. हम एक ठाकुर का रूप ले लेते हैं, थोड़ा सा लीला चिंतन कर लेते हैं, बस। ये बार बार इस बार आर्टिकल में रिपीटेडली वे कह रहे हैं
कि पर्सनल एस्पेक्ट ही है, लेकिन उसका इम्पर्सनल भी है। बार बार ध्यान देना चाहिए कि ठाकुर जो हैं वो सच्चिदानंद जी। स्वरूप हैं। ठाकुर जो हैं वो केवल रूप नहीं है। और अगर आप ठाकुर को ध्यान से सोचो, उसका विचार करो, तो देखेंगे कि ठाकुर तो हमेशा समाधि में रहते थे। तो जी। हम तो फॉर्म देखते हैं, लेकिन समाधि ठाकुर कहाँ है? समाधि में, यानी सच्चिदानंद परमात्मा में है। तो ठाकुर का वास्तविक रूप तो परमात्मा ही है। और जी। उसके बाद में जो तीसरा लेवल आता है मोनेस्टिक लेवल, यानी उसमें ठाकुर भी चिदानंद रूप है, शिवोहम शिवोहम। ठाकुर में सब कुछ जो है वो मोनेस्टिक है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये तीनों है। पहली बात तो यह है इस आर्टिकल में, इन तीनों को अच्छी तरह समझ लो, पहली बात। दूसरी बात, ध्यान के जी। समय निराकार और साकार, साकार ध्यान से शुरू करो, निराकार इम्पर्सनल तक जाओ, इतना कर सकते हो। और तीसरा, प्रतिदिन जी। शिवानंद रूप शिवोहम शिवोहम प्रतिदिन शिवोहम। करो। ये जी। ध्यान के समय नहीं होगा, ये अलग से होगा। जी। इसका करके नेक्स्ट संडे को जी। फिर बताना मेरे अच्छा, को। अब मैं जी हैं? बताएंगे। नेक्स्ट संडे को इसको महाराज वो जी, करना। मैं दो प्रश्न और पूछना चाहती हूँ हाँ, लास्ट पूछो। वीक से। वन आप पूछो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसम्यूट द आयरन केस इनटू ए ग्लास केस, it seems it is impossible to bring this change in one life. If not, what are the chances of getting human birth in the next life, because we are unaware of our sanchit karma? No, don't worry about the chances. Try to live as much as good as possible, even in their old age. Yes. Swami, Yes. Saint Francis of Brother Lawrence कहते हैं, जी. at the age of 80 he says that I am 80, and एक nun को लिखा है you are 60. Still let us begin. तो 60 बरस और 80 बरस की उम्र में भी आध्यात्मिक जीवन शुरू किया जा सकता है। तो क्यों सोचते हो कि तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा? लगो ध्यान से, अपना साधना जम के लगाओ जी। फालतू बात अपने हम नहीं जानते कि कितना टाइम बर्बाद करते हैं हम जी। अननेसेसरी वेस्ट कितना टाइम करते हैं। वो सारे टाइम को भगवान में लगाओ। 10,000 तक करो रोज जी। अरे बाप रे 10,000 वो करके देखो ना। हाँ, तब करो, उसके बाद ये प्रश्न नहीं उठेगा तुम्हारे पास, ये तुम प्रश्न नहीं उठाओगे जी। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू सांख्य फिलोसॉफी यूनाइट different purushas with the supreme one? इसका भी जवाब मैंने दे दिया था, नहीं दिया था? सांख्य फिलॉसफी में सुप्रीम, एनीवे सांख्य फिलॉसफी में सुप्रीम बीइंग नहीं है। अच्छा, सुप्रीम परमात्मा सांख्य में नहीं है, कोई परमात्मा है नहीं। सुप्रीम स्पिरिट या ऊंचा कोई एक आत्मा ऐसा नहीं है, तो उसको यूनाइट करने का प्रश्न नहीं उठता। तुम आत्मा हो, तुम मुक्त हो, खत्म हुई बात। अच्छा, चलो रीता, खत्म है। प्रणाम महाराज। रीता है कि चले गए? यस, प्रणाम स्वामी जी। We thought that but late you have left. No, I have not left. How to imagine page 419 that one is drowned in the infinite ocean of consciousness. This imagination is not coming easily. No, can you imagine they are drowned in a ocean of water? No. You cannot even imagine that you are drowned in an ocean of water. So how can you imagine that you are in ocean of the consciousness? But Rivet so don't worry about it. That you imagine. Don't worry about it. It's not for you. अलग-अलग है ना? Then you consider yourself as a bird flying in the sky. That I can imagine.
Okay, बस. Then the second question is how to apply concept of formlessness or impersonality to oneself. Formlessness, huh? Yes, Swamiji. Impersonality. You see, every one. day, इसीलिए कहते Chanting. हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम. ये बार बार प्रत्येक दिन कहना चाहिए. Yes, स्वामी जी. अच्छा, अब उसको विचार एक तो ये है करने के बाद, दूसरा ये है कि ये बॉडी जो है तो ये तुम यू आर नॉट देयर, इट इज योर बॉडी, इजंट इट? That is how we imagine that it is my body. नहीं, ये बॉडी इज योर्स. मेरा बॉडी है ना? Yes. Mind is also yours. Yes. Is also yours. Yes. Body has a form, but is not you. It is yours. So you are separate from body. Yes. So you are formless. Yes. Body has a form. Oh. अब पॉइंट इज कि अगेन करोगे नहीं. ये प्रश्न कर लिया और 7 दिन बाद फिर वही प्रश्न करोगे, ऐसा नहीं समझी नहीं. अच्छा ठीक. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन. Then the third question, the whole problem it continues, body consciousness. Practicing purification and detachment together is suggested by revered Swamiji. I think I don't know how to really practice this. Acha, you don't know how to practice purity? Yes, I try not to think bad thoughts. I try to, when anger comes to me, I try to, I repeat Thakur's name, and then the anger goes away. The moment I look at Thakur's photo and think, the anger goes away. So is that practicing purity of mind? So you know how to practice purity, okay? Yeah. Detachment. Your detachment, you know how to practice? Detachment, I know, but it becomes difficult. You see, detachment by vichar, discrimination by discrimination. विवेक के द्वारा वैराग्य आता है. Detachment is वैराग्य. तो वैराग्य यानी देख लो किन किन चीजों से तुम अटैच्ड हो. तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी किताबें, you are attached to those things. So vichar, discriminate, you say these things will not remain, they will go away. Get detached with the body is constantly changing. विचार के द्वारा डिटैचमेंट आएगा. प्यूरिटी की प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस इन कई प्रकार से. ओके? यस स्वामी जी. यस स्वामी जी. थैंक यू स्वामी जी. अच्छा, एनीवन एल्स? महाराज जी एक छोटा क्वेश्चन है महाराज जी. ठाकुर जी ने पूछूं क्या महाराज जी? पूछो. महाराज जी, ठाकुर जी ने बताया कि when the mind is not attached to the sense objects, it automatically turns towards God. तो ये जो गॉड बता रहे हैं क्या स्वरूप है, ये साकार है, निराकार है, ये स्वरूप ठाकुर का ये क्या बता रहे हैं ठाकुर जी कि जब माइंड इज डिटैच्ड फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट. हाँ सर हमारा जी, when the mind is detached from, sorry please continue Maharaj ji, please finish your stating. Yeah, I have finished myself that statement. So whatever your concept of God is there, in that your mind will go. Acha. Okay. Thank you Maharaj ji. Thank you. महाराज कैन आई? महाराज मेरे सवाल रह गए. महाराज एक क्वेश्चन मैं पूछूं? नहीं ये क्या ना, बोलो अपने सुबीर.
हाँ महाराज जी। सुबीर बोलो महाराज जी। हाँ, दो सवाल थे मेरे। प्रणाम महाराज जी, मेरे 2 सवाल थे। बोलो पूछो। एक सवाल का तो जवाब काफी हद तक मिल गया। 422 पेज में जैसे कहा था, बाय ट्राइंग टू लुक एट द बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड थिंकिंग ऑफ द स्पिरिट, our sense of personality is minimized even if thoughts and feelings don't disappear altogether. तो अंदर से देखने वाली बात आपने समझा दिया। आप हमारे साथ वो गाइडेड मेडिटेशन जब करते थे तो आप हमें इस चीज को पे स्ट्रेस करते थे कि वो देखो, कोशिश करो अपने आप अंदर से देखने के लिए। एक मुखौटा पहना हुआ है, तो वो मैं बिल्कुल समझ गया। लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट और भी है महाराज जी, और वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो वो स्टेटमेंट महाराज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। वो स्टेटमेंट ऐसा है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? नंबर 422 पेज नंबर। हाँ महाराज जी, 422 है शायद। आई एम लिसनिंग पेज। हाँ ओके, लग रहा है। जस्ट टेक 1। वो बोलो। I'm unable to access that page महाराज जी, because मेरे पास यहाँ किताब नहीं है। वो अगला जो सेंटेंस है उसके बाद ओके बोलो। कह रहा है कि जो बाहर की चीजें जो दिखती है उसके बारे में है। तो मेरे को एग्जैक्टली वो पेज नहीं आ टाइम। अच्छा, read what you are reading. Should I read it for you? Please read. Can you please read for me? You are trying page 422, that same paragraph which starts with by trying to look at the body from inside and thinking of the spirit animating it. Our sense of personality is positively minimized even if thoughts and feelings do not disappear altogether. Right. After that, again, try to apply this process of looking from within in the case of the forms which appears in the mind and create troubles. The outward form of ours as well as of others is associated with desires and passions which seem to disappear the moment we come to have the inward view. Face plays a great part. That's all. That portion. Okay. So what is the question? You have to look. It is you can understand how to look at your body from inside. Okay. Now your question is how to look at your thoughts from inside. Okay. Yes. Yes, Anna. Your desires and passions. जी. Try to apply the process of looking within. In case of forms, create trouble. The outer form of ours as well as of others is associated with desires and passions, which seem to disappear the moment we come to have an inward view. The moment we go inside, पंच कोश हुए ना। पहला कोश हुआ देहमय अन्नमय कोश, तो बॉडी हो गया। प्राणमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, और उसके बाद में हो गया आनंदमय कोश। ये 5 कोश जो है वो आत्मा के ऊपर है, आत्मा उसके अंदर है। The moment you try to go inside your body, you go to prana. But when you see prana, ये तो प्राण यानी सांस ले रहा हूँ मैं, खाना खा रहा हूँ, तो ये मेरे प्राण हैं। The moment you go inside, you go to your mind. ये मेरे thoughts हैं। मेरे थॉट्स हैं, मेरे आइडियाज हैं, मेरे डिजायर्स हैं, मेरी पैशंस हैं। I go inside. And then we come to ego, बुद्धि and then ego. Oh, ये सभी मेरा ही है, आई कर रहा हूँ मैं तो इनसे भिन्न हूँ। The moment you try to go inside, and the inward view जैसे ही होगा, उसके बाद में क्या होगा? All these things disappear. Swamiji, also from I think we should all read Turning Within again and again. The article Turning Within. Yes, the whole article is that. Yes. That I used to read. Question is okay? Yes. हाँ ठीक है महाराज जी, समझ गया। The inward journey. My last question महाराज जी। हाँ, I understood.
an inward journey. ठीक है? Last question. हाँ महाराज जी. On page 427, Maharaj ji again says, even the dualist sees the world as a lower order of reality than the divine. जो डुअलिस्ट है वो वर्ल्ड को भी डिवाइन के कंपैरिजन में लोअर ऑर्डर देखती है. माय क्वेश्चन इज, शुड द वर्ल्ड बी टेकन एज ए लेसर रियलिटी इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज अनरियल? हम कहते हैं ना कि जगत मिथ्या है, तो हम जगत को मिथ्या ना कह के कैन वी से इट्स ए लेसर रियलिटी, जगत भी सत्य है और जो ये इट इज द क्वेश्चन. जगत दोनों सत्य है, ठीक लेकिन है, ठीक है, जगत क्वेश्चन हो गया तुम्हारा. that's No, I understood your question. Should I answer now? जी महाराज जी. See, hello. देखो, लेकिन हियर यू जगत को जगत मिथ्या जो है वो अद्वैत पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है जी, और यहाँ ड्यूअलिज्म की बात की जा रही है. जी. ड्यूअलिज्म में जगत को सत्य माना गया है, इसलिए हायर रियलिटी और लोअर रियलिटी कहा गया है. अद्वैत वेदांत में जगत को मिथ्या कहा गया है जी. तो यहाँ डोंट कंफ्यूज द टू. ओके महाराज. इफ यू वांट अद्वैत वेदांत, जगत को मिथ्या मानो. ओके. बट इफ यू वांट ड्यूअलिज्म, जगत को लोअर सत्य मानो. जी, समझ गया. इज दैट क्लियर? ड्यूअलिज्म में तो जगत को सत्य मानते हैं. हाँ महाराज, समझ गया महाराज. ओके, आत्मा परमात्मा जो है वो ज्यादा सत्य है. ओके ओके, ठीक है. जी महाराज जी. प्रणाम महाराज. और किसी का क्वेश्चन? हाँ भाई, ठीक है. और किसी का क्वेश्चन? महाराज जी एक छोटा सा क्वेश्चन था महाराज जी. महाराज जी पूछो क्या? पूछो जल्दी पूछो. हमारा जल्दी से पूछ लो महाराज जी. तुरानंद जी अपना लास्ट लाइफ का लास्ट सेंटेंस जो उन्होंने उच्चारण किया, उसमें बताया थे कि जगत सत्य, ब्रह्म सत्य, सत्य प्राण प्रतिष्ठित. मतलब इसका क्या अद्वैत का सेंस में बताया कि द्वैत का सेंस में बताया? ब्रह्म सत्य, जगत सत्य. हाँ, सत्य प्राण प्रतिष्ठित. सत्य सब प्राण नहीं. अच्छा, सत्य प्रतिष्ठित. यस. ब्रह्म सत्य, जगत सत्य, सत्य सत्य प्रतिष्ठित. हाँ, ये क्या अद्वैत सेंस है? सत्य जगत. अब मुझे बोलने दो. अच्छा. ब्रह्म जब टू बिगिन विथ अद्वैत वेदांत की साधना में ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या. ओके ओके ओके. दिस इज द वे यू स्टार्ट. गो ऑन टेलिंग जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, देह भी मिथ्या है, मन भी मिथ्या है. गो ऑन टेलिंग इट टिल यू सी जगत डिसअपियर्स और ओनली ब्रह्म रिमेन्स. उसके बाद में व्हेन यू कम आउट यू फाइंड दैट जगत भी सत्य है. ठाकुर बोलते हैं सीढ़ी से ऊपर जब चढ़ोगे तो क्या होगा? ये सीढ़ी नहीं है, ये छत नहीं है, छत नहीं है, छत नहीं है. ऊपर जाओगे, छत पे पहुंचोगे. फिर नीचे जब उतरोगे तब कहोगे कि ये सीढ़ी भी उसी मिट्टी की बनी हुई है, ये सीढ़ी जो है वही ईंट की बनी हुई है. तो जो छत है वही ईंट सीढ़ी भी है. ओके. ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है. दोनों ठीक हो गए? हाँ महाराज जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू महाराज जी. प्रणाम महाराज जी. हाँ महाराज. महाराज, ये कर्म करते समय हम अपने को आत्मा कैसे मानेंगे? कर्म कैसे करेंगे? देखो जी, कर्म करते समय जो जिसका कर्म जिस कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, उसको कहते हैं ना कि उसको भगवान मानो. ठीक है, वो तो बोलते हो ना. जी जी. तो हमारे राष्ट्र में क्या है कि दो बातें कर सकते हैं. ब्रह्मानंद जी कहते थे थिंक ऑफ गॉड बिफोर यू डू वर्क. हाँ, वो समझ गया. ऑल्सो थिंक ऑफ गॉड आफ्टर यू डू. जी. एंड ऑल्सो इन बिटवीन. इन बिटवीन. जी जी. तो ऐसा जब करोगे, कर्म एक पेशेंट को देखा, उसके पहले भगवान को याद कर लिया. पेशेंट को देखना कंप्लीट हुआ, फिर भगवान को याद कर लिया. जी जी. बीच में थोड़ा सा याद आया तो फिर याद कर लिया. जी. इस प्रकार से भगवान को बीच बीच में याद करते रहना चाहिए. एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद में ये स्वभाव बन जाएगा कि जिसको भी देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये भगवान. अरे वाह, ठीक है. तो जब तक ये नहीं होता है तब तक कर्म को और भगवान का स्मरण को अलग करके रखना चाहिए.
जी जब उसमें प्रतिष्ठित हो जाओगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भगवान और कर्म, ये दोनों, भगवान और जो कर्म है वो उसमें कोई अंतर नहीं। जी ये हुआ बहुत तुम्हारा अच्छा। क्वेश्चन? जी महाराज बहुत और भी अच्छे कुछ से था ना हुआ। उसके अंदर? नहीं, और भी था उसके अंदर, और क्वेश्चन में और भी कुछ था क्या? नहीं जी नहीं फिर महाराज से पढ़ो, बराबर। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। नहीं महाराज मैंने तो अभी ऐसे ही पूछा है, ये प्रैक्टिकली हम जैसे कर्म कर रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे आत्मा मानेंगे? हम अपने आप को तो आत्मा मान रहे, तो वो कर्म करते समय हम कैसे मानेंगे? ये तो मैंने कहा कि हाँ जी, शुरू में करो, अंत में करो, और अंत बीच में में करो, बीच में करो। हाँ जी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि कुछ कर्म होते हैं उसमें 75% मन खाली रहता है। जी। जैसे झाड़ू लगाना है हम्म। तो मैकेनिकल हो गया, 75% खाली है मन। हाँ उसमें 75% मन से भगवान का स्मरण कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो। जी जी जी। हाँ लेकिन जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो पूरा मन लगाना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं जिसमें आधा मन भगवान में लग सकता है, कुछ में 75% लग सकता है, कुछ में 90% मन भगवान में लग सकता है। जी। लेकिन कुछ में आपको कर्म करते समय पूरा मन भगवान कर्म में लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा जी, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ तक कि जो ऑपरेशन होता है उसमें भी जो सर्जन है वो ऐसा मैकेनिकल हो जाता है कि वो स्टिच लगाते रहेगा तो भी उसका मन, ये तो मैकेनिकल है, मन खाली रह सकता है, भगवान का स्मरण कर सकता है। जी जी। सर्जन स्टिच लगाते हुए भी बातचीत करते रहते हैं ना। जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो उस प्रकार से हो सकता है। जी। तुम पेशेंट को याद देखो, तब उसके पहले भगवान को याद कर लो। पेशेंट को देखना समाप्त हो जाए तब भगवान को याद कर, सारा जी काम हो महाराज। जावे तब एक एक पेशेंट को कर लो, उसके बाद सारा कर लो। मतलब ये जी दो महाराज। बातें हो गई कि बिफोर एंड, शुरू में, आखिरी में और अंत में भगवान को याद करना, और दूसरा ये है कि कुछ में ज्यादा याद कर सकते हैं, कुछ में कम याद कर सकते हैं। कुछ में कम याद कर। बहुत अच्छा, ठीक है महाराज, प्रणाम। ओके महाराज एक क्वेश्चन मेरा भी। महाराज क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ लूं? प्रणाम पूछो महाराज। पूछो, जल्दी पूछो। तो महाराज जी बहुत ये जरूरी था पूछने के लिए, एक्चुअली है तो बहुत बेकार सी बात। वो ये कि ठाकुर ने ही कौन बोल रहा है? कौन? नाम बोलो, नाम। रीता वाधवा महाराज जी, रीता वाधवा। मेरे वचनामृत में जैसे पढ़ा है कि ठाकुर बोल रहे ये कलयुग चल रहा है और इसमें दूसरे तरीके से भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। हम क्योंकि पंच इंद्रियों के साथ रहते हैं और हर समय हमारी आंखें देख रही हैं, तो हम अपने जैसा आकार ढूंढते हैं। तो भक्ति योग इज द इजीएस्ट वे इस काल में, और उसमें भी ठाकुर का नाम बार बार रिपीट करना सबसे आसान तरीका है उनको पाने का, और ये एक्चुअली फलित भी होगा। तो मेरा ना दिमाग ऐसे ही इसी तरफ चलता है और दूसरी चीजों के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। मुझे आज ये पूछना भी है कि क्या मेरे को सारे प्रश्न सारी चीजें ज्ञान लेने के बाद ही आपको मतलब ये प्रश्न पूछना चाहिए, या एक तरफ चल रहा है तो बस वही चलना चाहिए? ठाकुर ना, दो ना, इतना अच्छा चल रहा है, भगवान का नाम बराबर चल रहा है, मन उधर लगा हुआ है, तो फिर प्रश्न क्यों करते हो? बड़ा बढ़िया है ये। हाँ, बस यही ठाकुर, यही महाराज पूछना था कि अगर एक चीज समझ में आ गई तो मैं क्यों दूसरी चीजों को समझने की कोशिश करूं, बस इसी में करूं। जी जी, बस बस आशीर्वाद दीजिए महाराज की उसमें मन लग भी जाए। जी, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर ये जूम मीटिंग से तुमको कुछ प्रॉब्लम होवे, कंफ्यूजन होवे, तो मत ज्वाइन करना। यस। नहीं महाराज, कंफ्यूजन नहीं है, वो ये नहीं है। देखो मेरा प्रश्न का आपने आंसर दिया तो दूर हुआ ना, ये प्रश्न कैसे पूछते अगर मैं इसमें नहीं होती तो। अच्छा, आज तो रेणुका बेन ने ज्वाइन किया है। हाँ जी। रेणुका बेन ज्वाइन किया, बोलो। हाँ, ज्वाइन किया है। बोलो। हाँ, आपने बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया। हाँ, बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया है। मेरा प्रश्न ये है कि जब
हमारी प्रार्थना अपने आप के लिए होती है और चारों तरफ विश्व में इतनी अहिंसा हो रही है, उस समय अहिंसा को दूर करने की प्रार्थना नहीं होती। क्यों? हम तो प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम प्रत्येक दिन करते हैं। उसके साथ ये भी करते हैं कि प्रभु ऐसा करो कि मेरा मन हमेशा भगवान में लगा रहे। तो खुद के लिए भी प्रार्थना करते हैं और सभी को सबके लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप लोग नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है, तो अब हमारे लिए उसको क्या करना, लेकिन हम तो हमेशा ही करते हैं। वो 5 श्लोक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, दूसरा है दुर्जन सज्जनो भूयात्, उसके बाद सर्वस्तरतु सर्गाणि, सर्वे भद्राणि पश्यतु, सर्व सद्बुद्धिमाप्नोति, सर्व सर्वत्र नंदतु, काले वर्षतु पर्जन्य, वर्षा ठीक समय पर होवे, पृथ्वी शस्यशालिनी होगे, लोग जो हैं सब सुखी होवे। ये एक 5 श्लोक हैं, उसको हम रोज करते हैं और ये हमको नियम है, हमको बताया गया है कि प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये तो अवश्य करना चाहिए, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा। धन्यवाद महाराज। और ज्वाइन करेंगे आप, रेगुलरली करेंगे कि नहीं करेंगे? कोशिश तो जरूर करूंगी, पर कोशिश आर्टिकल करना। पहुंच जाता है ना आपके पास? हाँ, आर्टिकल पहुंच जाता है ना? आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, इसलिए समझ में नहीं आया। संजय जी आर्टिकल हमेशा भेज देते हैं सब पार्टिसिपेंट्स के पास में। हाँ हाँ, भेज तो देते, संजय जी हमेशा भेज देते। बस ठीक है, बंद करें फिर। ओके, शांति मंत्र महाराज। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री